Now we request all the participants to put their right hand on their heart. We are going to play ICI motto song. य एष सुप्तेषु जागृति य एष सुप्तेषु जागृति कामं 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 कामपुरुषो पुरुषो निर्मिमाणः निर्मिमाणः तदेव शुक्रं तद्ब्रह्मा तद्ब्रह्मा तदेवामृतमुच्यते तस्मिन् लोकः शितः सर्वे तदूनात्यपि कश्चन एतद्द्वैता 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 एतद्द्वैता. Now I request Chairman of Ahmedabad branch, CA Famil Shah, to give his opening remarks. Good morning to all the participants present. A very respected speaker, Dr. Riddhiji, CA Anjali Choksi, Chairperson of Vikasa. Also joining with us right now, CA Hitesh Pomal, Regional Council Member, and also the Chairman of Vikasa WIRC, and Bishan Bhai, Secretary of Branch, and all the members who have gathered in this early morning to get the knowledge with respect to how we can improve on one or another aspect of health. And we are very happy to say that this is the 6th consecutive Sunday where in morning and evening, in morning we are discussing on health, and in the evening we are discussing on spirituality. And friends, apart from it, right, we cannot waste a single minute of not hearing to Riddhi ma'am. So I'm not giving other things, but I can say that right now blood donation camp is going on at Ahmedabad branch. So I invite you all to this blood donation camp, and some motivation for you to join is you can join with your family, because at Ahmedabad branch we have made a wonderful Christmas decoration and Santa Claus is also there. So from 1 to 5 p.m. you can come up, right? Bishan Bhai has made a very good arrangement with respect to that. So you can come up with family, because in this pandemic situation we are thinking कि हम हमारे बच्चों को कहाँ लेके जाए, और बच्चे तो कहते ही थे हमें कहीं ना कहीं जाना है. तो yes, branch is the best place. You can come up. So come, donate the blood, and also cherish some moments with Santa Claus with your family at the branch. So with these words, I invite Anjali Ben to address the audience. A very good morning to all of you. It is glad that we are seeing wonderful participation from all the members, spouses, and students of Ahmedabad branch with this health series. Today we are starting with the series which has been organized and arranged by Midas and Motherhood Hospital, and we have wonderful team of doctors with various sessions. Like today we are having nutrition and lifestyle diseases. Next we have skin and healthcare problems. We are also going to have a separate series for the women related diseases, diabetes, arthritis, and we are thankful to the founder of Motherhood Hospital, Twinkle Patel, CA Chirag Gandhi Nirali. And it's my pleasure to introduce today's speaker, that is esteemed Dr. Riddhi Nanda. She is a consultant for various issues related to related to children, and she's been associated with the Motherhood Hospital since more than 5 years now. And without taking much time, I again welcome Dr. Riddhi Nanda and request Riddhi Nanda to take the session ahead. Hi, Anjali. Am I audible? Yes, you're audible. Yes. Thank you so much for the warm welcome. And good morning, everyone. It's a Sunday morning, and I'm really glad that, you guys are giving a priority to your health. And whosoever is here, I really want to thank you for taking this initiative for your health. And even I'm very glad to know that you guys have been doing a various initiative
for your members. So very nice. Now, Anjali ji, can I please request you to put up the slides? Shehzad bhai, can you start the presentation? Yes, it's here. Okay. Okay, perfect. So it's a Shehzad bhai who is handling this. Yes, yes. Okay. So Shehzad bhai, whenever I say that flip the slide, would you be able to do that? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay, perfect, perfect. And Anjali, could you please tell me that, you know, what language would be more comfortable with the members? English, Hindi, Gujarati? Mix, no issues. No issues with anything? Okay, perfect, perfect. Right. So could you please go to the next slide right away? Right. As Anjali ji has already given my introduction, my name is Dr. Riddhi Nanda. I'm a nutritionist. So we will start from learning or understanding this terminology. And first of all, let me just be very, very clear. मैं यहाँ पे कोई प्रेजेंटेशन देने नहीं आई हूँ, यहाँ पे कोई ऐसा भाषण देने नहीं आई हूँ जो आपको बोर करे और आपकी संडे मॉर्निंग का जो 1 आवर आपने निकाला है वो स्लीपीनेस में आपको डाल दे. Right? I want this session to be very, very interactive. I have been doing lots of webinars during this pandemic, and उसके पहले मैं ऐसे associations में और सारी जगह पे in person जाती थी, so that I can spread more and more awareness about the nutrition, because this is my passion, right? So यहाँ पे I request Anjali ji that, you know, at the end if we can keep some time for the questioners, और इन बिटवीन इसलिए नहीं क्योंकि यू नो फिर लिंक टूट जाती है सॉर्ट ऑफ थिंग, बट इवन कुछ ऐसा अर्जेंट क्वेश्चन है तो कोई भी मेंबर रेज कर सकते हैं क्वेश्चन क्वेरीज, बिकॉज आई लाइक इंटरैक्टिव सेशंस रादर देन ओनली मी स्पीकिंग. But yes, here on the digital platform, we have a lot of limitations. So first of all, let's just start with the understanding this terminology, nutrition. Right? So nutrition क्या है? लोगों को आजकल लगता है कि न्यूट्रिशन यानी सप्लीमेंट्स, न्यूट्रिशन यानी कोई टैबलेट्स, कोई कैप्सूल्स या कोई प्रोटीन पाउडर. फॉर एग्जांपल हर्बल लाइफ, लोग काफी सुन रहे हैं आजकल, हर्बल लाइफ का प्रमोशन बहुत ज्यादा हो रहा है. दैट्स नॉट व्हाट इज न्यूट्रिशन. ओके, इट्स नॉट न्यूट्रिशन. न्यूट्रिशन सिंपली मीन्स पोषण. दैट्स व्हाट इट मीन्स. कि कोई भी ऐसे एलिमेंट्स जो आपको पोषण दे सके. नेक्स्ट स्लाइड प्लीज शहजाद भाई. नेक्स्ट स्लाइड प्लीज. या थैंक यू. सो व्हेन आई एम एलैबोरेटिंग ऑन न्यूट्रिशन, जैसे मैंने बोला, इट्स अ पोषण. सिंपली कहीं से भी कोई भी ऐसे तत्व जो हमें पोषण दे पाए. सो न्यूट्रिशन का काम क्या है हमारे बॉडी में? सिंपली न्यूट्रिशन का काम है हमारे बॉडी में जितने भी ऑर्गन्स है वो एक दूसरे के साथ वेल कम्युनिकेट कर सके, एक दूसरे को समझ सके, और पूरी जो बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है आपके बॉडी में वो बहुत अच्छे से चल पाए, ताकि लॉन्ग टर्म तक. हम सबका एक मोटो है ना, जिसके लिए भी आप यहाँ पे आज आए हो, कि हेल्थ. तो हेल्थ क्या है? सो अगर WHO की डेफिनेशन देखी जाए तो इट्स नॉट ओनली अ फिजिकल एस्पेक्ट, बट फिजिकल, मेंटल, इमोशनल, ऑल द एस्पेक्ट. एंड हमने काफी बार ये सूत्र भी सुना हुआ होता है कि जैसा अन्न वैसा मन. सो खाना सिर्फ फिजिकल नीड के लिए नहीं होता है, but definitely it is also for your atma, for your man, for your body, for lot of things. ऐसा भी बोला जाता है हमारे आयुर्वेदा साइंस में कि जैसा ही आप खाते हो वैसे ही आपके विचार होते हैं. अगर आप सात्विक खाना खा रहे हो तो आपके विचार उस हिसाब से होंगे. अगर आप तामसिक खाना खा रहे हो तो you will be more of on the anger nature, stressed, irritated, frustrated, all sort of problems, right? सो न्यूट्रिशन यानी कोई ऐसे एलिमेंट्स जो बॉडी की साइकिल, जो रिदम में भगवान ने उसको बनाया है, माँ प्रकृति ने उसको बनाया है, वो अच्छे से चल सके लॉन्ग टर्म तक, जितने भी आप, जहां तक भी आप जिंदा हो.
So let me just give you an example of our ancestors. पहले की generations जितने भी years जीती थी, 90 years, 100 years आराम से, they were very healthy and fit. जबकि आजकल क्या हो रहा है कि by the end of like 30 years, 40 years कुछ ना कुछ problem शुरू ही हो जाते हैं, या उसके पहले भी. The youngest case I have detected at my hospital, that is a 12 years ka kid who is have been having a diabetes, and that is not the genetic one but lifestyle related one. So आजकल हम सबको पता है कि अभी हेरिडिटरी नहीं बट लाइफस्टाइल की वजह से काफी सारे प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, और कहीं ना कहीं खाने का रोल बहुत बड़ा है. सो न्यूट्रिशन सिंपली मीन्स ऐसा खाना जो आपके बॉडी को पोषण दे सके, पोषण ऐसा कि आपके बॉडी को तंदुरुस्त रख सके, जिंदा दिल रख सके, आपको कोई डिजीज ना हो. दैट्स व्हाट द न्यूट्रिशन मीन्स. नेक्स्ट स्लाइड प्लीज. सो क्या सोर्स है न्यूट्रिशन का? सो न्यूट्रिशन का सोर्स हमारा खाना और हमारा पीना है. सो बॉडी में एक रिदम सेट कर दी गई है बाय नेचर के भूख लगने का जो इंडिकेशन होता है, दैट इज नॉट ओनली फॉर कैलोरीज बट दैट इज ऑफ कोर्स फॉर लॉट ऑफ अदर न्यूट्रिएंट्स. सो न्यूट्रिएंट्स यानी कौन कौन से? सो साइंटिफिक लैंग्वेज में अगर बात करूं, सो हम सबको कहीं ना कहीं पता है कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, फैट, विटामिन्स, मिनरल्स एंड वाटर. These are the 6 major nutrients यानी पोषक तत्व जिसकी बैलेंस मात्रा में बॉडी को हर रोज जरूरत होती है. ऐसा नहीं है कि आज प्रोटीन लिया तो 2 दिन नहीं लेंगे तो चलेगा. ऐसा नहीं है कि आज विटामिन B12 वाला खाना खा लिया, विटामिन डी आज ले लिया, कल नहीं लिया तो चलेगा. Every nutrient, every vitamin, every mineral, every protein, every molecule of carbohydrates and fat to be ingested on daily basis. क्योंकि हमारा बॉडी तो हमारे लिए 24/7 वर्क करता है, वो तो कभी छुट्टी पे नहीं जाता है. सो उसको प्रॉपरली फंक्शन करने के लिए, ये मशीन को प्रॉपरली फंक्शन करने के लिए हमारे खाने से पोषक तत्व मिलने चाहिए. और वो पोषक तत्व देने के लिए माँ प्रकृति ने, नेचर ने अलग अलग सीजन में अलग अलग चीजें बनाती है. फॉर एग्जाम्पल वो फूड ग्रुप्स अगर आप देख लो तो सीरियल्स हैं, पल्सेस हैं, लेग्यूम्स हैं, दालें हैं, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स, नट्स, सीड्स, कितना सब कुछ हमारे लिए माँ प्रकृति बनाती रहती है. बट हम बस 365 डेज एक मोनोटोनस खाने पे चले गए हैं. मॉर्निंग में हमारा नाश्ता शुरू होता है बिस्किट्स, वेफर्स, या फिर खाखरा, ममरा, चवाना, गाठिया, ऑल दिस थिंग्स. गुजराती लोग हैं तो उनके घर में खाखरा हमेशा होता है. सो एंड देन people have developed a tendency of having a light breakfast, कि हम तो ब्रेकफास्ट बहुत लाइट करते हैं. एंड देन व्हेन दे कम टू मी एंड से कि मैडम इतना लाइट खाना खाते हैं पूरे दिन, फिर भी पता नहीं ये वजन कम ही नहीं हो रहा है और बढ़ते जा रहा है. सो इट्स नॉट अबाउट ईटिंग लाइट खाना, इट्स अबाउट हाउ मच न्यूट्रिशन, कितने न्यूट्रिएंट्स डेली बेसिस में आपकी ईच मील में जा रहे हैं. बॉडी को जो फ्यूल चाहिए, जो क्वालिटी का, क्या आप वो फ्यूल अपने व्हीकल में डाल रहे हो? That is what the balanced diet means. Diet does not mean dieting. Diet and dieting are the two separate terminology which I'll explain you in the further slides. So balanced diet यानी ऐसा खाना जो सबसे पहले seasonal हो, जो लोकल हो, रीजनल हो, रीजनल यानी हमारे आजू बाजू बनता हो, लोकल हो, ताकि और वो फ्रेश हो तो वहां पे न्यूट्रिशन बहुत अच्छे हैं. फॉर एग्जाम्पल यूएस से आया हुआ अवाकाडो हमें कभी न्यूट्रिशन नहीं दे सकता, बिकॉज वो वहां से यहाँ पे पहुंचने के लिए काफी टाइम लगता है, उसके पहले कितनी प्रोसेसिंग हो जाती है. तो न्यूट्रिशन डज नॉट मीन महंगा महंगा खाना, इंटरनेशनल खाना. अगर ऐसा ही होता, अगर हमारा वेजिटेरियन डाइट प्रोटीन में डेफिसिट होता, अगर वेल बैलेंस न्यूट्रिशन हमारे खाने में नहीं होते, तो हमारे एंसेस्टर्स इतने हेल्दी कभी नहीं होते. वो तो हमसे ज्यादा फिजिकल एक्टिविटी करते थे,
उन लोग के लाइफ में बहुत ज्यादा फिजिकल वर्क था, तो भी वो लोग अपनी अगर रिक्वायरमेंट मीट कर सकते थे तो हम क्यों नहीं? So my dear friends and the members, ask this question to yourself whenever you are watching any sort of YouTube videos which is telling you कि Indian खाने में या vegetarian खाने में enough protein नहीं है. That's not true. Protein powders को, सारे products को market में launch करना था, इसलिए there has been a hype. Okay, सारी चीजें, सारे products बिक रहे हैं. I'm not saying कि सब कुछ खराब है, बट जहां पे जिसकी जरूरत होती है तभी ही ऐड करना चाहिए. माँ प्रकृति ने हमारा बॉडी बनाया है, सो माँ प्रकृति को पता है कि इसकी क्या रिक्वायरमेंट है. रिक्वायरमेंट के हिसाब से, सीजन के हिसाब से वो तो अपना काम अभी भी कर रहे हैं जिस हिसाब से पहले किया करते थे. बट हम हमारी थाली में लिमिटेड खाना सजा रहे हैं, प्रोसेस्ड खाना सजा रहे हैं. That's why we are not getting balanced nutrition. And not getting balanced nutrition is leading to either lot of weight gain or not gaining the weight or getting into a lot of different lifestyle diseases. So balanced diet simply means ऐसा खाना जो आपको पूरे पोषक तत्व, जो 6 न्यूट्रिएंट्स के बारे में मैंने आपको बताया, वो 6 न्यूट्रिएंट्स आपके डेली बेसिस की, आपकी जो हाइट है, वेट है, जिस हिसाब से आपकी बॉडी की रिक्वायरमेंट है, एज है, उसके हिसाब से अगर जा रहे हैं, then you don't have to worry about it. आप जितना भी जियोगे बहुत हेल्दी जियोगे. सो खाना इज द बेसिक नीड जहां से हमारा बॉडी फंक्शन करता है, और उसके लिए बैलेंस डाइट होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. नेक्स्ट स्लाइड प्लीज. Right. Now let me just share with all of you that despite of being a doctor, why I decided to become a nutritionist. So I am a doctor by profession, and मैंने मेरी ये जर्नी स्टार्ट करी पोस्ट माय प्रेगनेंसी, माय फर्स्ट प्रेगनेंसी के बाद में, बिकॉज जब से मैं छोटी थी, आई रिमेम्बर इन अ ग्रेड 12 आई वाज वेइंग 87 kg. सो चाइल्डहुड ओबेसिटी हमेशा रही है मेरी लाइफ में, एंड उसके बाद में मैं कुछ ना कुछ आड़ा टेढ़ा कर लेती थी जस्ट टू लूज वेट. आई वाज लूजिंग वेट, आई वाज गेनिंग इट बैक, आई वाज लूजिंग इट, गेनिंग इट बैक. तो ये लूजिंग और गेनिंग का हमेशा प्रोसेस चलता रहता था. एंड जब मेरी फर्स्ट प्रेगनेंसी कंसीव हुई, तब आई गेन अगेन 30 kg. दैट वाज अ वेरी इमोशनल ट्रॉमेटिक पार्ट इन माय लाइफ. I got into a depression कि अभी इसके लिए कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा. I wanted to figure out a permanent approach, and then I decided to study a nutrition science for myself. Never thought that I would become a nutritionist one day. And when I was going through my nutrition study, I figured out lot of things जो कभी किसी ने समझाया नहीं, कभी किसी ने सही बताया नहीं, और मार्केट में बस कुछ ना कुछ प्रोडक्ट्स पे पूरा ये वेट लॉस का प्रोसेस हमें समझाया जाता है. सो आई वाज वेरी मच मोटिवेटेड बाय दैट, एंड आई स्टार्टेड वर्किंग ऑन माई सेल्फ. सो व्हेन आई my post pregnancy my weight was around 95. so 95 से लेके मेरी 57 kg की जर्नी. so this is what I have created for myself. And of course that lot of people around me got motivated. मैंने कोई supplements, कोई powder, कोई tablets कुछ नहीं लिया था. It was just purely based on a lifestyle modification and a food modification. Then I decided that कि कितने सारे ऐसे मेरे जैसे लोग हैं जो हमेशा पूरी लाइफ इसके पीछे भागते रहते हैं और परेशान होते रहते हैं. So I decided to become a nutritionist full time, and here I started with my journey. Next slide, please. Right. So as I was going through with my practice years ago, I saw that सोसाइटी में एक बहुत बड़ा गैप चल रहा है. कहीं ना कुछ तो गड़बड़ी हम लोग कर रहे हैं, जिसकी वजह से अगर आप देखें तो अपने आजू बाजू 2 टाइप के लोग आपको दिखेंगे. या तो लोग बहुत ज्यादा मोटे हैं,
या वेट गेन की कंप्लेंट्स करते रहते हैं, या दूसरे टाइप ऑफ पीपल they are not able to lose weight. They will always creep about कि मैं तो कितना भी खाना खा लूं ना, I'll never be able to gain weight. So that's called the dual burden of malnutrition. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक कैंपेन चल रहा है ये ड्यूअल बर्डन ऑफ माल न्यूट्रिशन के लिए एंड ऑफ कोर्स व्हेन आई वाज गोइंग थ्रू अ हिस्ट्री, लाइक जितने भी पेशेंट्स मेरे पास आते हैं, फर्स्ट वी टेक अ डिटेल हिस्ट्री टू फिगर आउट द रूट कॉज ऑफ द प्रॉब्लम. सो वहां पे कहीं ना कहीं ये ड्यूअल बर्डन ऑफ माल न्यूट्रिशन 99% केसेस में देखने को मिलता है. सो व्हाट इज दिस ड्यूअल बर्डन ऑफ माल न्यूट्रिशन? सो एक साइड हम लोग ऐसा खाना खा रहे हैं जो ओवर न्यूट्रिशन है, दूसरी साइड हम ऐसा खाना खा रहे हैं जो माल न्यूट्रिशन है. सो व्हाट इज दैट? हम सबको पता है कि हमारे लाइफ में पैकेट फूड का कंजप्शन, रिफाइंड फूड कंजप्शन बहुत ज्यादा बढ़ गया है. काफी सारे लोग ऐसे भी होंगे जो बोलेंगे कि हम तो कभी बाहर का खाना खाते ही नहीं है, मेरे घर में कोई पैकेट्स नहीं आते हैं. मे बी दैट इज द केस, बट स्टिल यू आर डीलिंग विद अ लॉट ऑफ वेट गेन इश्यूज, या वेट ना गेन करने का इश्यू भी हो सकता है, या फिर आपको ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, कोलेस्ट्रॉल, थायराइड, यूरिक एसिड, कोई भी प्रॉब्लम्स हो सकते हैं. सो ऐसा क्यों? इट्स बिकॉज हमारा खाना जिस हिसाब से इवन हम लोग घर पे भी बनाते हैं, हमारे किचन में भी 3 रिफाइंड प्रोडक्ट्स आ गए हैं: रिफाइंड ऑयल, रिफाइंड शुगर, रिफाइंड सॉल्ट. और दूसरे 2 दुश्मन हमारे किचन में है, दैट इज नॉन स्टिक वेसल्स एंड एल्यूमिनियम वेसल्स. वहीं पे हम हमारा खाना बनाते हैं. प्लस क्योंकि किसी के पास टाइम नहीं है, तो हमारा जो खाना बनता है बहुत हाई फ्लेम पे फटाफट बनता है. कुकर्स में फटाफट सीटियां बज रही है, विद इन हाफ एन आवर तो आपका पूरा खाना बन जाता है. सो हियर जो माँ प्रकृति ने, नेचर ने जो न्यूट्रिशन दिए हैं, जो विटामिन, मिनरल्स, प्रोटीन सब कुछ दिया है, वो फटाफट डिप्लीट हो रहा है, फट रहा है. उसकी वजह से हम जब हमारे थाली में कोई कुछ सजाते हैं, सो मेजोरिटी ऑफ द न्यूट्रिशन आर गॉन. वो जो लेफ्ट ओवर मटेरियल है, जो लेफ्ट ओवर पार्ट है, विच इज डेफिनेटली गिविंग अस अ गुड अमाउंट ऑफ कैलोरीज, हमारा पेट भर जाता है. काफी सारे लोग बोलते हैं कि मैडम हम लोग तो बस घर का ही खाना खाते हैं, रोटी सब्जी दाल चावल, फिर भी क्यों वेट गेन हो रहा है? बिकॉज वहां पे कुकिंग मेथड्स की वजह से, या देयर आर लॉट ऑफ अदर इश्यूज व्हिच आर हैपनिंग इन आवर कुकिंग मेथड. हम लोग बहुत ज्यादा पानी में किसी चीज को भिगाते रहते हैं, खुली खुली ऐसे ही ओपन रसोई हो रही है जिसमें से विटामिन एवापोरेट हो रहे हैं. सो माल न्यूट्रिशन ऑफ विटामिन एंड मिनरल्स एंड प्रोटीन, ओवर न्यूट्रिशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट. कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट हमारे दुश्मन नहीं है. काफी सारे लोग बहुत ज्यादा अट्रैक्ट हो रहे हैं कि लो कार्ब डाइट, नो कार्ब डाइट, नो फैट डाइट. गाइस, ये कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. क्या आप जानते हो कि कार्बोहाइड्रेट्स की वजह से ही हमारा ब्रेन फंक्शन करता है? अगर आप कार्बोहाइड्रेट्स नहीं खाओगे, दैट गेट्स कन्वर्टेड इनटू ग्लूकोज डायरेक्टली, आपका ब्रेन फॉग होना शुरू हो जाएगा. कभी अगर आपने कोई फास्टिंग की है, या कोई ऐसे मोमेंट में गए हो जहाँ पे लंबे टाइम तक आपने खाया नहीं है, तो ब्रेन फॉगिंग होना, हेडेक होना, डिजीनेस होना, ये सारे सिम्टम्स आ जाते हैं, बिकॉज ग्लूकोज हमें नहीं मिल पाता है. सो नेवर थिंक कि कार्बोहाइड्रेट्स या फैट गंदे हैं. फैट की वजह से ही सेक्सुअल हार्मोन्स बनते हैं. फैट का जो हमारे जो सेल्स है, उसकी आउटर लेयर फैट की ही बनी होती है. सो हमें कार्बोहाइड्रेट्स, फैट, ये सारे तत्व चाहिए, बट एवरीथिंग हैज टू बी बैलेंस्ड एंड everything has to be good. There are 2 sorts of fat. One is a good fat, one is a bad fat. The problem in modern lifestyle is we have been consuming lot of bad fats. Mayonnaise, cheese, मलाई, क्रीम, ये वाला हम लोग खाना खाएंगे. बट अगर घर में रोटियां खा रहे हैं तो वी विल मेक श्योर कि हम लोग उसमें घी नहीं लगाएंगे. So ghee is a good fat versus ये जो आपका मेयोनीज है, चीज है, क्रीम है, those are all the bad fat. Why? Because उन लोग उसका बहुत ज्यादा प्रोसेसिंग हो गया है. So वो प्रोसेसिंग में उसके जो बॉन्ड्स है वो डिप्लीट होके कुछ और बन गया है, जिसको बोलते हैं ट्रांस फैट.
एंड ट्रांस फैट डायरेक्टली आपकी आर्टरीज में इकट्ठा होना शुरू हो जाता है, इसलिए ब्लॉकेजेस होते हैं एंड हार्ट अटैक, ब्लड प्रेशर, आगे जाके बाईपास करवाना, ये सारी चीजें बहुत कॉमन हो गई है। अभी वो एज रिलेटेड प्रॉब्लम्स नहीं रही है। सो कोई भी चीज खराब नहीं है जब तक हम उसको बैलेंस में ले। एंड डेफिनेटली हमारा खाना बहुत ज्यादा आर्टिफिशियल हो गया है। एज पर द आयुर्वेदा लैंग्वेज अगर मैं बात करूँ तो जो माँ प्रकृति कोई भी खाना बनाती है उसमें बहुत ज्यादा प्राण शक्ति होती है, जो हमारे बॉडी को प्राण शक्ति देने के लिए कैपेबल है। बट जब हम उसको बहुत ज्यादा प्रोसेस करते हैं, कुक करते हैं, लोगों को लगता है कम ऑयल यानी हेल्दी खाना, ज्यादा ऑयल यानी बैड, unhealthy खाना. That's not how you differentiate healthy and unhealthy food. The actual differentiation is on the basis of वो खाने में कितनी प्राण शक्ति बची है, वो खाना लिविंग है या डेड है। सो कोई भी चीजें जो बहुत ज्यादा प्रोसेस्ड हो चुकी है, फॉर एग्जाम्पल खाखरा, गुजराती लोग होंगे तो दे विल बी हैविंग खाखरा ऑन डेली बेसिस, ममरा ऑन डेली बेसिस, या कोई भी गाठिया, चवाना, मिक्सचर, कुछ भी। सो जब भी हम बहुत ज्यादा कुक्ड फूड ले रहे हैं उसमें कोई पोषक तत्व बचता नहीं है। सो एक खाखरा खाने से बेटर है आप एक रोटी खा लो, बिकॉज रोटी में अभी भी थोड़ी प्राण शक्ति है कंपेयर टू खाखरा विच हैज बीन प्रोसेस्ड अ लॉट। सो बहुत सिंपल नेचर है, द मोर यू प्रोसेस योर फूड लेसर द न्यूट्रिशन इज। एंड इसलिए मैदा, सब लोग को आजकल पता है कि मैदा इज नॉट गुड फॉर हेल्थ, बट व्हाई नोबडी नोज दैट? क्योंकि गेहूं को इतना ज्यादा प्रोसेस किया कि नाउ द मैदा इज ओनली अ रिफाइंड पाउडर। दैट रिफाइंड पाउडर हैज नो न्यूट्रिशन, उसको बोलते हैं एम्प्टी कैलोरीज वाला खाना। सो जिसमें न्यूट्रिशन नहीं है उसकी कैलोरीज बहुत ज्यादा बढ़ जाती है एंड न्यूट्रिशन लेवल 0 होता है। सो हमारा खाना कैसा होना चाहिए? अदर वे अराउंड, इट शुड बी वेरी वेरी रिच इन द न्यूट्रिशन। तो बाय डिफॉल्ट वो जितनी कैलोरीज देना चाहिए उतनी ही देता है। सो कैलोरी कट ऑफ करने की जरूरत नहीं है, बट न्यूट्रिशन रिच खाना खाना जरूरी है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। राइट, सो हम सब कहीं ना कहीं डरते हैं कि ओबेसिटी की वजह से ये लिवर डिजीज होते हैं, यूरिक एसिड है, गर्ल्स में पीसीओडी पीसीओएस के प्रॉब्लम है, इनफर्टिलिटी, ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, अप टू कैंसर, एनीथिंग एंड एवरीथिंग इन टूडेज लाइफस्टाइल। जो भी डिजीज आ रहे हैं वो लाइफस्टाइल डिजीजेस है, यानी हमारी जीवन शैली की गड़बड़ी की वजह से उत्पन्न हुए डिजीज, जिसको ठीक करने के लिए हम सिर्फ दवाइयां लेते हैं और कुछ नहीं करते हैं। सो जो चीजें लाइफस्टाइल की गड़बड़ी की वजह से पैदा हुई है उसको लाइफस्टाइल जब तक ठीक नहीं करोगे वो कैसे ठीक होगी? एंड हम लोग को तो बस रेडीमेड अप्रोच चाहिए। कुछ हुआ है, डॉक्टर के पास, सर्दी हो गई डॉक्टर के पास, खांसी हो गई डॉक्टर के पास, गैस, एसिडिटी, कॉन्स्टिपेशन, सर दर्द कर रहा है, कुछ भी। तो व्हाट, आई एम नॉट अगेंस्ट द डॉक्टर, आई एम अ डॉक्टर बाय प्रोफेशन, बट ऑल आई एम सेइंग इज दैट जो चीजें हमारी जीवन शैली की गड़बड़ी की वजह से पैदा हुई है उसको डॉक्टर परमानेंटली क्योर नहीं कर सकते। डॉक्टर का काम है आपको टेम्पररी रिलीफ देना। आप हेडेक की कंप्लेंट्स लेके गए हो, आपको वो टैबलेट दे देंगे, टेम्पररी रिलीफ मिल जाएंगे, दूसरे दिन वहीं के वहीं खड़े हो। तो जब तक रूट कोज के ऊपर काम नहीं करोगे कि मेरे लाइफ में मुझे जो हेडेक हो रहा है फ्रीक्वेंटली वो कहाँ से आ रहा है, तो जब तक वो हेडेक का रूट कॉज नहीं पता है उसका परमानेंट क्योर नहीं मिलेगा। एंड जो एलोपैथी साइंस है उसकी ये लिमिटेशन है। कोई भी डिजीज, कोई भी बंदा अगर डायबिटीज की मेडिसिन ले रहा है तो हमेशा के लिए वो लाइफ लॉन्ग तक डायबिटीज की दवाइयां लेगा। ब्लड प्रेशर की दवाइयां चालू करी, देयर इज नो एंड टू इट। थायराइड की दवाइयां ली, देयर इज नो एंड टू इट। क्यों? क्योंकि दवाइयां उसको मेंटेन, मैनेज करना का काम करती है, उसको क्योर करने का नहीं।
unless and until you decide कि मुझे जो प्रॉब्लम हुआ है उसका प्रॉब्लम का रूट कोज पकड़ के मुझे उसको परमानेंटली जड़ से मेरी लाइफ में खत्म करना है, तब तक ये पॉसिबल नहीं होगा. एंड सेम थिंग गोज विद द वेट और obesity. Unless and until you work on the root cause of your obesity, it will never be cured. Next slide, please. So, yes, absolutely. कोई भी lifestyle diseases है. You name it. Everything is reversible. Unless and until वो इतने ज्यादा डैमेजिंग फेज में चला गया है कि अभी उसका रिवर्सल पॉसिबल नहीं है, तो मैनेज तो कर ही सकते हो. फॉर एग्जाम्पल, कल ही मेरे पास लिवर सिरोसिस का पेशेंट आया. सो लिवर सिरोसिस यानी अभी आपका लिवर इतना ज्यादा सड़ चुका है, तो उसको रिट्रीव करना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है. बट वी कैन मेक श्योर कि इतना ज्यादा जो डैमेज हो रहा है डे टू डे बेसिस पे, उसको अभी वहां पे तो मेंटेन करें. सो लाइफस्टाइल जब हम चेंज करते हैं, जब हमारी फूड हैबिट्स चेंज करते हैं, तब डायरेक्टली उसका इम्पैक्ट आपकी जो मेडिकल कंडीशन है उसके ऊपर होता है. वेदर इट्स थायराइड, डायबिटीज, पीसीओडी, पीसीओएस, एनीथिंग एंड एवरीथिंग is either reversible or manageable, but not with the medicines. Medicines अपना काम करती है. सिर्फ medicinal approach में जाओगे, you will not be cured for anything. But 50% is the medicine, 50% is the lifestyle and food modification, and then you get the 100% result. And most of the people are unaware of this fact, and वो पूरी जिंदगी एक के बाद एक, क्योंकि just understand one thing guys, medicines at the end are chemicals. कोई भी चीजें आपके बॉडी में लॉन्ग टर्म कोई भी केमिकल्स जाते हैं वो बहुत ज्यादा डैमेज करते हैं. सो या तो लिवर बिगाड़ रही है या किडनी बिगाड़ रही है. दवाइयां, हर एक दवाई का साइड इफेक्ट होता है वो होता ही है, वो मामूली सी पैरासिटामोल भी क्यों ना हो. सो लॉन्ग टर्म कोई भी मेडिसिन डेफिनेटली आपके बॉडी को और बिगाड़ेगी. इसलिए जब कोई एक प्रॉब्लम होता है उसके बाद वो शुरू ही हो जाता है पूरा एक विशियस साइकिल. थायराइड आया है, 5 साल बाद ब्लड प्रेशर आएगा, उसके बाद डायबिटीज आएगा, उसके बाद ये, इट्स अ कंटिन्यूअस साइकिल. बट रादर देन दैट, कब कोई एक कंडीशन आ रही है, या फिर आई वुड से प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर. जब भी एक छोटा सा सिग्नल भी बॉडी देती है, हम कैसे हमारे व्हीकल में अगर थोड़ी सी भी आवाज आती है तो तुरंत मैकेनिक के पास जाते हैं ना, जस्ट टू मेक श्योर कि आगे कोई बड़ा डैमेज ना हो. तो क्यों नहीं हम हमारे बॉडी के सिग्नल्स को सुनते. हर रोज अगर हेडेक हो रहा है तो यू नीड टू थिंक कि हर रोज हेडेक हो रहा है, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ी है. लेट मी गो टू अ न्यूट्रिशनिस्ट. यस, दिस इज व्हाट आई एम सेइंग. For anything and everything, you should not be running to a doctor. डॉक्टर आपको टेम्पररी रिलीफ देने के लिए मेडिसिन दे सकते हैं, क्योर नहीं कर सकते. सो यू शुड बी रनिंग टू अ न्यूट्रिशनिस्ट, get the root cause analysis done and work on that, because nutritionists are the one who can figure out the root cause and आपको वो पूरा गाइडेंस दे सकती है कि ठीक है ये प्रॉब्लम है, इसको इस हिसाब से टैकल करेंगे तो वो विद इन सम टाइम इट विल बी क्योर्ड. सो एक न्यूट्रिशनिस्ट का काम सिर्फ वेट लॉस देना नहीं होता है. बट आपको कोई भी प्रॉब्लम है, आपके हेयर फॉल हो रहे हैं, आपको एक्ने हो रहा है, हाइट नहीं बढ़ रही है, वेट नहीं बढ़ रहा है, वेट कम नहीं हो रहा है, हेडेक, गैस, एसिडिटी, कॉन्स्टिपेशन, all these issues to be resolved forever, and वो लाइफस्टाइल और फूड मॉडिफिकेशन से ही पॉसिबल है. If I give you a very simple example, कॉन्स्टिपेशन अगर लंबे टाइम तक चलता है, व्हाट इज कॉन्स्टिपेशन? आयुर्वेदा लैंग्वेज में बोला जाता है कॉन्स्टिपेशन यानी आपका खाना आपके बॉडी में अंदर सड़ रहा है, सिंपली. तो लॉन्ग टर्म कॉन्स्टिपेशन विल गिव यू हाई यूरिक एसिड, विल गिव यू हाई कोलेस्ट्रॉल, विल मेक श्योर कि आपके हेयर फॉल होना शुरू हो जाए, विल मेक श्योर कि आपको एक्ने होना शुरू हो जाए, बिकॉज गंदगी पनप रही है आपके इंटेस्टाइन में, तो बाहर तो निकलेगी.
through other channels. And then what you do is स्किन के प्रॉब्लम के लिए डर्मेट के पास जाओगे, कॉन्स्टिपेशन को लेके या तो आप कोई भी चूर्ण खाओगे या कैसे ही टेम्पोररी फिक्सिंग करोगे. फिक्सिंग फिक्सिंग फिक्सिंग, द होल लाइफ गोज इन द फिक्सिंग. एंड व्हाट इज गेटिंग कॉम्प्रोमाइज्ड? योर क्वालिटी ऑफ लाइफ. जस्ट इमेजिन कितना भी बड़ा फंक्शन है आपके घर में, अगर छोटा सा भी हेडेक होगा ना, यू विल नॉट बी एबल टू एंजॉय फुल्ली. सो कोई भी छोटा सा इंडिकेशन फ्रॉम योर बॉडी हैज बीन गिवन टू यू, टेक इट एज एन अलार्म कि समथिंग इज गोइंग रॉन्ग, जिसको मुझे परमानेंटली क्योर करना है. ऐसी छोटी 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 प्रॉब्लम सालों तक पनपती रहती है, हम उसको दबाते रहते हैं, पनपती रहती है, दबाते रहते हैं. अल्टीमेटली इट टेक्स अ फॉर्म ऑफ डिजीज. एंड देन वी थिंक मुझे ये कैसे हो गया, मेरे घर में तो किसी को डायबिटीज नहीं है, मैं तो बिल्कुल शुगर वाला खाना नहीं खाती हूँ, मैं तो बिल्कुल ये नहीं करती हूँ, ये नहीं करती हूँ, तो मुझे ये डिजीज कैसे आया? सारे डिजीज के रूट में कहीं ना कहीं हमारी ही गलती छुपी हुई है, जो आज के जमाने में है. So kindly focus on all the indications which have been given by your own body and उसको neglect ना करो. Negligence पेशेंट से बहुत ज्यादा हो रही है, एंड इंडिया में स्पेशली ये प्रॉब्लम है. जब तक बहुत ज्यादा बड़ी कंडीशन ना हो जाए, हम उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं लेते. प्रिवेंशन का साइंस इंडिया में है ही नहीं. सो आई हैव बीन टेकिंग दिस लेक्चर्स through a lot of media because we want to spread an awareness कि prevention पे काम करना कितना important है. वेट क्यों करते हो जब तक डैमेज इतना बड़ा हो जाए कि वो रिवर्सल की स्टेज में ही नहीं है, या आपकी लाइफ इतनी ज्यादा बिगड़ जाएगी, यू विल बी ऑन द 5 to 6 टैबलेट्स ऑन डेली बेसिस. सो अगर आपको अपनी क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव करनी है, जितना भी जियो हेल्दी जियो, ये मोटिव आपका अगर है, तो आज से ही आपको अपने बॉडी के इंडिकेशंस को ऑब्जर्व करना सीखना होगा, एक हेल्दी वेल बैलेंस्ड लाइफस्टाइल में जीना शुरू करना होगा. सो हेल्दी वेल बैलेंस्ड लाइफस्टाइल डज नॉट मीन फूड ओनली, but food plays 70% role. Rest of the 30% is physical activity, stress management, proper water intake and टाइम से सोना, टाइम से उठना. ये 5 बेसिक नीड है हमारे हेल्थ की, ताकि हमारा बॉडी जिस हिसाब से बना है उस हिसाब से अच्छे से फंक्शन कर सके लॉन्ग टर्म पे. सो जितना भी जियोगे, हेल्दी जियोगे, देन एज इज ओनली अ नंबर. ओके, सो हेल्दी खाना महंगा होता है ये जरूरी नहीं है, इंटरनेशनल होता है जरूरी नहीं है. सो ये हेल्दी खाना चीप भी हो सकता है, बहुत टेस्टी भी हो सकता है. इट्स जस्ट यू नीड टू एक्सप्लोर दिस वर्ल्ड. नेक्स्ट स्लाइड प्लीज. राइट, नाउ लेट मी जस्ट फोकस ऑन अ वेट अ लिटिल बिट. आजकल क्योंकि वीडियो में, यूट्यूब के वीडियो में या कहीं पे भी लोग इतना कुछ देख लेते हैं, स्पेशली हर्बल लाइफ, कीटो डाइट, सब कुछ इतना ज्यादा प्रमोट हो रहा है. इट्स अ इंडस्ट्री गाइस, इट्स अ मनी मेकिंग इंडस्ट्री. जितने जल्दी आप वेट लॉस करना चाहोगे, उतना ही बाउंस वो होगा और होगा. जस्ट इमेजिन कभी एक महीने में 10 kg वेट गेन हुआ आपका. सो जो फैट तुरंत आ भी नहीं सकता है, वो फैट तुरंत जा भी नहीं सकता. और जब भी आप डाइटिंग करते हो, क्रैश डाइटिंग करते हो, कोई पाउडर्स पे चले जाते हो, कोई टैबलेट्स पे चले जाते हो, सारा खाना बंद करके सिर्फ मूंग के पानी पे चले गए, या फ्रूट्स पे चले गए, या वेजिटेबल्स पे चले गए, इट विल नॉट बी एबल टू गिव द बैलेंस न्यूट्रिशन जो मैंने शुरू में समझाया था. एंड जहां पे भी बैलेंस बिगड़ेगा, बॉडी का इक्विलिब्रियम बिगड़ेगा, तो बॉडी शुरू में तो क्योंकि वो शॉक में है, सो बॉडी फटाफट वेट गिराएगा, बट वो वेट फैट का ही नहीं होता है, वो मसल्स का होता है, वो पानी का वेट होता है मेजरली. सो व्हेन यू लूज योर मसल्स,
when you lose your water, तो उससे तो मेटाबॉलिज्म गिरेगा, उससे आप हेल्दी तो कैसे बन पाओगे? इसलिए जब आप वेट लॉस करते हो, शुरू में तो बहुत अच्छा लगता है, वाओ मैंने 1 महीने में 2 महीने में 10-12 केजी कम कर दिए, बट सी इन द स्लाइड थर्ड फिगर क्या है? तुरंत रीबाउंड होना शुरू हो जाता है, और वो जो रीबाउंड है वो डबल रीबाउंड होगा, क्योंकि अभी आपका वाटर लॉस एंड मसल लॉस इतना हो गया है कि आइडियली आपका जो मेटाबॉलिज्म है वो बहुत ज्यादा गिर चुका है। फिर आप एक रोटी भी खाओगे, आपका वेट गेन होगा। सो लाइफ टाइम के लिए डाइटिंग नहीं कर सकते। नोबडी हैज टू गो ऑन डाइटिंग. Nobody has to go for herbal life. No one has to go for keto diets. Healthy, well balanced food and a proper lifestyle. So lifestyle में जैसे मैंने अभी 5 फैक्टर समझा है, अगर आप रात को 1 बजे से पहले सोते नहीं हो, देन सुबह उठ, अभी काफी सारे लोगों को जल्दी जाना होता है तो उठ तो जाते हैं 6-7 बजे, बट रात को सोने का कोई फिक्स टाइमिंग ही नहीं है। जितना जगोगे, हार्मोनल इम्बैलेंस होगे, वेट गेन होगा। स्ट्रेस ज्यादा है आपके बॉडी आपकी लाइफ में, तो भी वेट गेन होगा। सो वेट गेन सिर्फ खाने से तो होता नहीं है। सो व्हाई वुड यू जस्ट वर्क ऑन द कैलोरीज? वर्क ऑन योर लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन। इसलिए ही रूट कोज पकड़ना जरूरी है। So do not go on a crash diets. That's as a nutritionist, as a doctor, that's my advice, suggestion, and a request to all of you. Next slide, please. Right. And there are a lot of questions usually क्योंकि न्यूट्रिशनिस्ट के पास जाना या कोई भी अप्रोच लेना, इट्स नॉट समथिंग विच इज वेरी यूजुअल अप्रोच इन इंडिया येट। तो हेल्दी लाइफ के लिए ऐसे क्वेश्चंस होते हैं कि क्या मुझे जो अच्छा लगता है वो मुझे छोड़ देना पड़ेगा? अभी मैं बाहर जाके खा नहीं कर सकता, एंजॉय नहीं कर सकता अपने फ्रेंड्स एंड फैमिलीज के साथ? जस्ट अंडरस्टैंड वन थिंग, आप सब कुछ खा सकते हो, आप पिज्जा भी खा सकते हो, बर्गर भी खा सकते हो, कुकीज, पेस्ट्रीज, व्हाटएवर यू लाइक, विच यू थिंक आपको पता है कि वो हेल्थ के लिए बहुत गंदा है, बट फूड इज समथिंग वेयर वी एंजॉय, वेयर वी रिलिश। हम फ्रेंड्स के साथ भी बैठे होते हैं तो फूड डेफिनेटली ऑर्डर करते हैं। सो लाइफ इज नॉट अबाउट द रिस्ट्रिक्शन। मंडे टू सैटरडे ये मशीन को प्रॉपरली वर्क करने के लिए आप सारे न्यूट्रिशन दो, और संडे देन यू हैव अ पार्टी। पर हम सबको पता है पार्टी हर रोज नहीं होती है ना। सो वैसे ही आप हर रोज थोड़ा 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 डेड खाना डाल रहे हो और संडे को एक ब्लास्ट कर रहे हो, तो हेंस द प्रॉब्लम्स अराइज। सो हेल्थ के तरफ जाने का रास्ता रेस्ट्रिक्शंस नहीं होता है, बट डिसिप्लिन से शुरू होता है। सो मंडे टू सैटरडे बॉडी को हेल्प करो, संडे आपको जो भी खाना पीना है, जैसे भी एंजॉय करना होता है। आई tell all of my patients, and that's also practice at my home, Sunday is a cheat day, so you can do whatever you want to do. Hence you are not even getting affected psychologically कि मैं कुछ खा ही नहीं रहा हूँ। You can have everything, but moderation, discipline तो हमें सीखना ही पड़ेगा for our own health. Next. Right. So ultimately answers to all your questions. Make it right. हम सबको पता है ना, आपके प्रोफेशन में, सीए के प्रोफेशन में भी होगा, यू हैव टू कीप अ बैलेंस। आप जो भी प्रोटोकॉल पे चलते हो, जो भी एसओपी पे चलते हो, जिस हिसाब से एसओपी होती है उस हिसाब से ही चलना पड़ता है। सो कहीं ना कहीं हमारा बॉडी का जो मैन्युफैक्चरिंग है वो हमारे हाथों में नहीं है, वो नेचर के हाथों में है। सो नेचर ने जिस हिसाब से बॉडी को बनाया है उस हिसाब से उसको चलाने के लिए थोड़े रूल्स एंड रेगुलेशंस, डिसिप्लिन इट्स नीडेड। क्योंकि आप अपने बॉडी के ऑनर हो, आप कुछ भी नहीं कर सकते इसके साथ। आप कुछ भी करोगे तो there will be a consequences, and if you are okay with any sort of consequences which your body or your life throws at you, then it's up to you. But if you are the person who wants to live healthy forever, तो बॉडी के इंस्ट्रक्शंस, बॉडी के जो फंडामेंटल नीड है
उसको समझना पड़ेगा और उसको सप्लाई भी करना पड़ेगा। उसके लिए कोई प्रोटीन पाउडर, कोई सप्लीमेंट्स, कोई महंगे खाने की जरूरत नहीं है। हमारा इंडियन ट्रेडिशनल फूड, it's very rich in nutrition. Every single recipe that we have been eating, जो अभी पहले खाते थे और आजकल भूल गए हैं, सीजनल कॉन्सेप्ट भूल गए हैं, ये सारी चीजें, वी डोंट रिमेम्बर द विरोधाहार का कॉन्सेप्ट एनी मोर। कुछ भी, कोई भी चीजें कभी भी खा लेते हैं। फ्रूट्स रात को खाते रहते हैं, खाना खाने के बाद फ्रूट खा लेते हैं, दूध कभी भी पी लेते हैं। सो रॉन्ग कॉम्बिनेशन इतना ज्यादा हो रहा है, इससे भी वेट गेन हो रहा है और लाइफस्टाइल डिजीजेस हो रहे हैं। सो विरोधाहार जो हम भूल गए हैं, जो हमारा बेसिक नॉलेज होना चाहिए, फूड विजडम होना चाहिए, वो कहीं पे कॉम्प्रोमाइज्ड है, इसलिए हम हेल्दी नहीं है। सो make it a right is the ultimate answer to all your questions. So if you guys are dealing with any sort of problems, concerns related to your health, it can be anything. It can be anything means anything. So my patients are 0 to 99 years. Pre-pregnancy से लेके pregnancy, post pregnancy, and जब तक 99 years ना हो जाए, you know, so all the problems can be easily reversed or managed by the nutritionist also without the vanya. So that is what I wanted to um, explain you all now. And please the next slide please. Right, so nutrition consultation में actually क्या होता है, there are a lot of people who might not be knowing. So nutritionist का काम होता है कि वो आपके साथ बैठे, हिस्ट्री ले, आपका रूट कॉज फिगर आउट करे और एज अ टीम हम आगे बढ़े। आप एक गोल लेके आते हो कि ये मेरा गोल है, ये मेरा प्रॉब्लम है, इसको मुझे रिजॉल्व करना है। सो आपकी कितनी भी हैक्टिक लाइफस्टाइल क्यों ना हो, आप भले फील्ड में रहते हो, कोई भी चीजें हैं जहां पे आप बोल सकते हैं कि यू आर गेटिंग, यू आर सीइंग द थिंग एज अ हर्डल, तो वो हर्डल को आपके रास्ते में से निकालने का काम, जो आपको हेल्दी होने से रोक रहा है, उसको हर्डल को रिमूव करके न्यूट्रिशनिस्ट आपको रास्ता दिखाने का काम करते हैं। एंड ये जो फर्स्ट न्यूट्रिशन काउंसलिंग होता है, इट टेक्स अबाउट 1 to 1.5 hours when we sit together and plan out and get the proper counseling done on the root cause of your problem. Next slide please. Right, so who can benefit from a nutrition counseling? Like I said, 0 to 99 years, anyone and everyone. बच्चा है, खा नहीं रहा है, वो फ्रूट्स नहीं खा रहा है, वेजिटेबल्स नहीं खा रहा है, इम्यूनिटी बहुत पुअर है, बच्चे का वेट गेन नहीं हो रहा है, बच्चा बहुत ओबीज है, एनीथिंग और एवरीथिंग कैन बी रिजॉल्व्ड। उसकी हाइट नहीं बढ़ रही है, देयर कैन बी एन नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स, पेरेंट्स को पता नहीं होता कि कहाँ जाए, किसकी मदद मांगे, राइट? सो हमेशा डॉक्टर के पास जाना जरूरी नहीं होता है। ओके, सो दैट्स एंड नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। Right, so ultimately let food be the medicine, right? So medicine के जो father रहे हैं Hippocrates, उन्होंने बोला है let food be the medicine, otherwise medicine would be the food. and यही हो रहा है आजकल की लाइफस्टाइल में। हमारे पॉकेट में 1, 2, 3 मेडिसिन होना बहुत ज्यादा कॉमन हो गया है। कोई भी घर ऐसा नहीं रहा आजकल जिनके घर में लाइफस्टाइल डिजीजेस नहीं है या कोई प्रॉब्लम्स नहीं है। गैस हो रहा है, एसिडिटी हो रहा है, कॉन्स्टिपेशन है, सर दर्द है, कुछ ना कुछ तो हमेशा ही है। सो हम सबको ये समझना पड़ेगा और एज ए सोसाइटी हमें इसमें ट्रांसफॉर्मेशन लाना पड़ेगा, क्योंकि अगर हमारी ये हालत है ये टाइम पे, इमेजिन destruction is so much, next generations will be highly compromised. So lifespan कम नहीं हो रही है, टेक्नोलॉजी है, हम लोग जिंदा रह पाएंगे 60 years 70 years, बट क्वालिटी ऑफ लाइफ कॉम्प्रोमाइज हो रही है क्योंकि हमारा खाना बहुत ज्यादा केमिकल्स वाला हो गया है,
बहुत ज्यादा प्रिजर्वेटिव वाला खा रहे हैं, कुछ भी खा रहे हैं, कोई भी टाइम पे खा रहे हैं. वी आर नॉट डिसिप्लिन्ड. सो डिसिप्लिन तो थोड़ी हमें लाना सीखनी पड़ेगी. If you are the person who is stuck anywhere, you guys can contact me anytime. I'm full-time available at the Midas Touch and Motherhood Hospital, working with Dr. Twinkle and Dr. Anand Patel. And yeah, that's all from my side. I hope it give you a good glance of what is the importance of food and what we can do by taking the help of food. So food is the ultimate medicine, and rightly said, our kitchen is the biggest pharmacy. We can reverse anything from that pharmacy. So Anjali ji, I'm done, right? Whatever you have to say, please go ahead. Hello? Anjali ji? Shehzad ji and Anjali ji, if you are there, please take over the session. I'm done from my side. I think Anjali ji is not there. Can someone else take over the session? And if you guys have any queries, questions from the members, you guys can ask me anything. I'm open for all the questions from your side. Hello, can you hear me? Yeah, I can hear you. Okay. I'm really sorry. Actually, we are at branch and we have the Christmas celebration here. So, on behalf of Ahmedabad branch of ICI, we are thankful to Dr. Riddhi Nanda for sparing her valuable time and sharing knowledge for the nutrition and lifestyle diseases. Thank you so much, ma'am. If Anjali ji, anybody else, could you please, remove the spotlight from me? I'm not able to see you. can you see me now? No. Okay. Yeah, I can see you now. Yes. Perfect. Okay. Thank you so Yeah. much for your humble words. Yes. Even I had, I always enjoy talking to people. Okay. Great, ma'am. Ma'am, we have some questions in the chat box. If you Okay. could guide us, there is one Tejas Shah. Would you allow people to speak it up rather than putting that on the chat box? Yeah, Mr. Tejas, you can just unmute yourself and you can ask questions directly to ma'am. Yeah, thanks for calling Miss Riddhi. That was a great session. I have a few questions about the toddler. My toddler is around 2 years old. So I want to ask, what is the base nutritious ingredients or the food we can give to increase his height and weight? Okay, and you say that your kid is 2 years old? Yes, madam.
Okay, and you feel that उसकी height और weight अच्छे से नहीं बढ़ रहा है? Is there any problem? Yeah, no, as such, there is no problem. He's on an average. Okay. When the world graph we are seeing, he's on average, but still we want to do it our best to give him the. Right. You just want to we make are, sure that, yeah, please go yeah, ahead. yeah, and I was adding that we are a Jain, so we don't eat. We only eat vegetarian and not also root vegetables. So some of the ingredients we cannot eat. So what we can recoup that? How we can recoup that? So there is a whole lot of, like I explained in the presentation, if you were there during the presentation, there are a lot of food groups. So it's fine if you are following Jainism. It is absolutely fine even if you are following veganism. Anything is fine. You don't have to be like a vegetarian to get a good protein out of your food. So हमारे पास कितनी ज़्यादा categories है, cereals है, and people think कि cereals में protein नहीं होता है. Rice is a very good source of protein. For example, right? Like a ragi जो करके है, ragi जो millet है, it's very very rich in calcium. Ragi को बोला जाता है poor man's milk. So हमें ऐसा लगता है सिर्फ मिल्क ही कैल्शियम दे सकता है, बाकी कोई चीजों में कैल्शियम ही नहीं है. So बैलेंस तो कुदरत ने सारी जगह पे छोड़ा है. All we have to make sure कि जो हम सीरियल्स खा रहे हैं, जो पल्सेस खा रहे हैं, जो दालें दे रहे हैं हमारे बच्चों को, एंड फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, इसका बैलेंस होना बहुत जरूरी है. द प्रॉब्लम इज हम लोग पूरे दिन, फॉर एग्जांपल अगर आप यू आर जैन एंड यू आर गुजराती, राइट? सो सुबह दोपहर रात को मेजरली क्या बनता है हमारे घर में? रोटी, भाकरी, थेपला, पराठा एंड खाखरा. Jain people are like fond of khakra. Like without khakra, it doesn't go further. Yes. So when we are eating everything from wheat, and then all of a sudden on YouTube you see, oh, wheat is giving this problem, that problem. Wheat is not the culprit. The culprit is the overconsumption. If you do ati of anything, there will be a damage. राइट. सो जो भी इन्फ्लामेटरी प्रॉब्लम हो रहा है, बच्चों के हाइट नहीं बढ़ रहे हैं, बच्चों के या तो वेट नहीं बढ़ रहा है, या कोई भी आगे जाके प्रॉब्लम हो रहा है बिकॉज अभी बच्चा बढ़ रहा है, तो उसको सारे न्यूट्रिशन की जरूरत है. तो वीट अकेला तो सारा न्यूट्रिशन नहीं दे सकता. वो इन्फ्लामेशन करता है इंटेस्टाइन में, और उनके जो गट बैक्टीरियल हेल्थ है, जो प्रोबायोटिक्स एंड प्रीबायोटिक्स का पूरा कॉन्सेप्ट है, वो प्रोबायोटिक्स कॉम्प्रोमाइज हो रहा है. उसकी वजह से वो लोग बहुत ज्यादा हाइपर एक्टिव हो जाते हैं, उनका मेमोरी शार्प नहीं रहता, उनका फोकस कंसंट्रेशन लूज हो जाता है. देयर आर लॉट ऑफ डैमेजेस व्हिच आर हैपनिंग. सो अल्टीमेटली आई वुड से कि तीनों टाइम के एक फंडा रखो. 3 टाइम 3 डिफरेंट ग्रेन्स या मिलेट्स. व्हीट ओनली वंस, दैट शुड बी अ फंडा. तब जाके, बिकॉज हमारी जो बेसिक रेसिपीज बनती है वो सीरियल्स एंड मिलेट से ही बनती है, तो वो तो हमें यूज करना ही है. उसमें हमेशा वेजिटेबल्स डालो. व्हेन यू आर एडिंग वेजिटेबल्स टू इट, यू आर मेकिंग श्योर कि उसमें विटामिन, मिनरल्स, फाइबर सब कुछ जा रहा है. डू नॉट ओवर कुक योर फूड. जितनी जरूरत है उतना ही कुक करो, और एल्यूमिनियम एंड नॉनस्टिक का यूज मत करो. आपके किचन में जो ऑयल जा रहा है उसको रिफाइंड से नॉन रिफाइंड में कन्वर्ट करो. So when you are adding oil, you are making sure कि वो oil भी कितने ज्यादा minerals दे रहा है. So it's all about the ingredients rather than कि क्या खाना देना चाहिए. हमने क्या खाया है, हमारे पेरेंट्स ने हमें क्या खिलाया है, घर का ही खिलाया है. फिर भी हम बच्चे थे तब तक तो हेल्दी थे ही, राइट? सो मेक श्योर कि आपका बच्चा दिन में कम से कम 1 या 2 फ्रूट खा रहा है, अच्छे से वेजिटेबल्स दे रहे हो. अगर आपका बच्चा ऐसे ही हमारे तरह से, बच्चे आर वेरी पीकी ईटर्स, अगर वो रोटी सब्जी नहीं खाता है तो यू विल कम आउट विद द रेसिपीज, यू नो, जो प्रेजेंटेबल हो. जैसे अंदर ही डाल दिया सब्जी सब कुछ, तो उसको पता भी नहीं चलेगा कि इसमें पालक है या मेथी है या दूधी है या क्या है. व्हाटएवर देन यू आर ईटिंग. सो जैनिज्म फॉलो करते हो, दैट इज फाइन. तो काफी सारी सब्जियां आप लोग भी खा सकते हो. ओनली रोज यू आर नॉट ईटिंग, दैट इज फाइन, राइट? सो रेस्ट्रिक्शन इज नॉट द प्रॉब्लम. द प्रॉब्लम है बाकी की जो अवेलेबिलिटी है उसमें से बेस्ट चूज करो. तो ऐसे एक दिन आप अपना डिजाइन कर सकते हो, और बच्चों को ओवर कंजप्शन ऑफ मिल्क मत दो.
मम्मीज बहुत ज्यादा फैसिनेटेड होती है मिल्क को लेके, बट आजकल मिल्क का इंडस्ट्रियलाइजेशन चल रहा है। मिल्क को इतना ज्यादा प्रोसेस किया जाता है कि वो मिल्क ही कहीं ना कहीं हमारा दुश्मन बन चुका है। सो वंस और ट्वाइस मैक्स आप अपने बच्चे को दूध दो, एंड मेक श्योर कि दूध एंड खाखरा ना खिलाओ, दूध एंड भाखरी ना खिलाओ, बिकॉज दूध और सॉल्ट कभी साथ में नहीं जाता है, इट्स विरोधाहार। सो मेक श्योर अगर आप दूध दे रहे हो तो उस टाइम पे सिर्फ दूध ही दो। दूध को डाइजेस्ट होने में कम से कम 1 घंटा लगता है, 1 घंटे के बाद फिर कुछ खाना खिलाओ। दूध के साथ डू नॉट कंपनसेट दूध एंड बिस्किट एंड दूध एंड खाखरा एंड ऑल दैट थिंग, एंड डू नॉट एड बॉर्नविटा, पीडियाश्योर या एनी सॉर्ट ऑफ चॉकलेट सिरप। ये पहले से ही हम हैबिट दे रहे हैं। प्रिजर्वेटिव तो मत डालो, अभी 2 साल का बच्चा है या कोई भी उम्र का बच्चा है, देन वी से कि मेरे बच्चे को तो आदत हो गई है ऐसा ही लेने की, तो अभी वो बॉर्नविटा के बिना तो दूध पिएगा ही नहीं। वो आदत किसने डाली? हमने डाली, उन लोग को नहीं पता है, राइट? सो दूध में कोई भी चीज मत डालो, उससे बेटर है आप जैगरी पाउडर डालो। जैगरी पाउडर बोल रही हूँ, जैगरी नहीं बोल रही हूँ। वो खड़ी शक्कर डालो जिसको हम मिश्री बोलते हैं, खजूर डालो, अंजीर डालो, पिस्ता डालो, कुछ भी डालो, बट एटलीस्ट गंदी जो व्हाइट शुगर है वो मत डालो, एंड कोई भी गंदे चॉकलेट सिरप्स मत डालो। इस तरह से दैट्स द बैलेंस डाइट फॉर अ किड, then your kid will not be depriving of any sort of nutrition. Very simple, right? And आजकल के बच्चों में विटामिन डी की डेफिशिएंसी बहुत ज्यादा पाई जाती है बिकॉज हमारे बच्चे घर से बाहर ही नहीं निकल रहे हैं। सो मेक श्योर 15 to 20 मिनट्स आपका बच्चा सनलाइट में एक्सपोज्ड हो और आप भी एक्सपोज्ड हो, राइट? सो फिजिकल एक्टिविटी बच्चों के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। उनको बाहर खिलाने के लिए लेके जाओ, उनको सनलाइट एक्सपोजर दो, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। एंड वाटर, ऑफ कोर्स आजकल के बच्चे पानी नहीं पीते हैं इतना, so make sure the bacha is having enough amount of water. One question, ma'am. Sure. Yeah. मैम मैं जिग्ना सोनी बात कर रही हूँ। हाँ मुझे हाइपरथायरॉइडिज्म है मुझे। ओके। और डॉक्टर्स बोल रहे हैं कि हमें कैबेज नहीं खानी चाहिए। क्या नहीं खानी चाहिए? कैबेज। और हम स्वामीनारायण फूड लेते हैं तो उसमें ओनियन गार्लिक तो हम लेते ही नहीं है। कई लोगों ने मुझे बोला कि अनियन खानी चाहिए इसमें, तो वो तो हम खाते नहीं है। तो इसका कोई सब्स्टिट्यूट होगा मैम? और कैबेज क्यों नहीं खाते वो आज तक मुझे पता नहीं पड़ा है। मैंने अपने डॉक्टर से भी पूछा तो वो कुछ बोले नहीं, तो इसका आंसर मुझे चाहिए कि कैबेज क्यों नहीं क्योंकि डॉक्टर को खुद को नहीं पता है। Okay, so the problem is not the cabbage. Okay, माँ प्रकृति की दी हुई कोई भी चीजें बॉडी को कभी नुकसान नहीं करती, बट कैबेज, कॉलीफ्लावर एंड ब्रोकली they are goitrogenic food. So goitrogenic food में जब महेंद्र भाई please unmute yourself. Thank you. So yes, Jigna Ben, can you hear me? Jigna Ben, are you there? Hello. I think Jigna Ben, are you there? Yes, ma'am. I can hear you. Okay, fine. So what I was saying is that cabbage, cauliflower, and broccoli, these are all the goitrogenic food. So goitrogenic food है ना, यानी उसमें कोई ऐसा तत्व है जब आपको थायराइड का इश्यू है। सी थायराइड का इश्यू यानी क्या? यहाँ पे लोकेटेड एक ग्लैंड है जिसका काम है कैलिब्रेशन का। सो आप लोग जो पूरे दिन पीसी में वर्क करते हो, अगर मदरबोर्ड उड़ गया तो क्या करोगे? आपका पीसी वर्क करेगा क्या? नहीं करेगा। राइट। सो यहाँ पे मदरबोर्ड कॉम्प्रोमाइज है। थायराइड इज द मदरबोर्ड ऑफ द बॉडी। नाउ इमेजिन के मदरबोर्ड जब फेलियर में चल रहा है, आप उसको अभी भी सिर्फ मेडिसिन पे ही चला रहे हो, राइट? तो मेडिसिन दो, बट साथ में आपको लाइफस्टाइल एंड फूड मॉडिफिकेशन करने पड़ेंगे ताकि ये रिवाइव हो जाए। तो आपको पूरी जिंदगी थायराइड की मेडिसिन खानी है या छोड़नी है? मुझे पहले ये बताओ।
वैसे तो मैं बताऊं ना मैम, मुझे 10 साल से है ये प्रॉब्लम। 10 साल क्या कितने भी सालों से, वो कोई नहीं फर्क पड़ता, बिकॉज हाँ। कभी आपने उसके सॉल्यूशन के लिए काम ही नहीं किया है। अभी आपका स्टैंड क्या है? 10 साल ऐसे निकल गए और 50 साल निकल जाएंगे। आर यू ओके विद दैट? नहीं, थोड़ा बहुत तो ऐसे इफेक्ट होता है मेडिसिन से, ऐसा है। मेडिसिन से तो होता ही है, बट जब हाँ। आपका मदरबोर्ड ही कॉम्प्रोमाइज है, ठीक है, तो हम्म। बाकी कितने सारे प्रॉब्लम्स होंगे। मैं अगर अभी आपकी हिस्ट्री लेने बैठूं ना, तो आप बोलोगे हाँ ये तो हो रहा है, ये तो हो रहा है, हाँ। ये तो हो रहा है। हाँ। देयर आर लॉट ऑफ हाँ। अदर प्रॉब्लम्स व्हिच आर हैपनिंग, व्हिच यू आर यस। नॉट एबल टू फिगर आउट कि ये क्यों हो रहा है। तो बिकॉज हम्म। आपका मदरबोर्ड कॉम्प्रोमाइज्ड है, राइट। सो हम्म। सिर्फ दवाइयों से कुछ नहीं होगा, और फूड रेस्ट्रिक्शंस पे मत जाओ। यू नीड टू कंसल्ट द न्यूट्रिशनिस्ट हु कैन गिव यू अ प्रॉपर डिजाइन। जहां तक आपका क्वेश्चन का आंसर है, कैबेज, ब्रोकली और कॉलीफ्लावर कच्चा नहीं खा सकते थायराइड इश्यू में, आप कुक ओके। किया हुआ खा सकते हो आराम से, ठीक है। ओके। एनीवेज कोई भी लोगों को कैबेज कच्ची नहीं खानी चाहिए, बिकॉज कैबेज की जो खेती होती है वो गटर के पानी में होती है, ठीक है। सो दैट इज लाइक हाईली इन्फेक्शियस, इन्फेक्शंस बहुत ज्यादा हो जाते हैं गट रिलेटेड। तो वी नेवर इवन प्रमोट कि आप सैलेड में कैबेज खाओ, किसी को कैबेज खाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अच्छा। सो आप कुक किए हुए कोई भी वेजिटेबल्स ले सकते हो। एंड ऑनियन एंड गार्लिक, सी ऑनियन इज वेरी रिच इन सिलेनियम, ओके। एंड जब आप थायराइड की मेडिसिन ले रहे हो, सिलेनियम नाम का तत्व आपके बॉडी में एब्जॉर्ब नहीं होगा। दैट इज द साइड इफेक्ट ऑफ योर मेडिसिन। इसलिए लोग आपको बोलते हैं, जिसने भी बोला है, राइट, कि ऑनियन गार्लिक खाना चाहिए, तो उसका मेडिसिनल इफेक्ट है। अगर आप स्पिरिचुअली जो भी फॉलो कर रहे हो, मेडिसिनली अगर आप गार्लिक और ऑनियन खा सकते हो तो खाओ, कंपलसरी नहीं है कि आप गार्लिक ऑनियन खाना शुरू करोगे और आपका थायराइड का प्रॉब्लम ठीक हो जाएगा, ऐसा भी नहीं है, ठीक है। सो स्पिरिचुअली या रिलीजियसली कुछ फॉलो कर रहे हो और आपका मन नहीं मान रहा है वो खाने को, इट्स फाइन, इट्स एब्सोल्युटली फाइन, बट देन रेस्ट ऑफ द थिंग्स यू विल हैव टू बैलेंस। 10 साल से ऐसे ही थायराइड के साथ जी रहे हो, ऐसे और 50 साल निकल जाएंगे। आई डोंट नो योर एज, बट आई एम जस्ट टेलिंग यू, राइट। सो बेटर टू वर्क ऑन दैट, अदरवाइज एक के बाद एक बीमारियां तो रहेगी ही हमेशा, राइट। हाँ, सही बात है। थैंक यू मैम। श्योर, वेलकम। श्याम भाई करके हैं जिन्होंने हैंड रेज किया हुआ है, श्याम पटेल। हेलो, एक्चुअली मैं उनकी सिस्टर बात कर रही हूँ मैम। उनके सॉरी सिस्टर, उनकी सिस्टर बात कर हाँ हाँ, बोलिए बोलिए, नो प्रॉब्लम, गो अहेड। यस मैम, मुझे ना थोड़े बेसिक क्वेश्चंस थे। एक, वेजीज को कुक्ड खाना चाहिए या फिर इन जूस फॉर्म भी हम खा ले सकते हैं? आई मीन मैंने इंटरनेट पे वो सर्च किया था तो ऐसा बता रहे थे कि कुक फॉर्म में ज्यादा न्यूट्रिशन होता है, ऐसा कुछ है? लाइक नहीं, ऐसा नहीं है। इट डिपेंड्स आप कौन से टाइम पे ले रहे हो एंड कौन से सीजन में ले रहे हो, एंड दैट आल्सो डिपेंड्स कि आपका बॉडी किस कंडीशन में खड़ा है। आई डोंट नो वेदर यू हैव हर्ड ऑफ वात पित्त कफ प्रकृति, जो आयुर्वेदा का बेस है, राइट। सो वात प्रकृति अगर आपके बॉडी में हावी है, इम्बैलेंस्ड वैसे ही चल रही है, तो ऐसे लोग अगर कच्चा वेजिटेबल का जूस पिएंगे या इवन सैलेड के फॉर्म में खाएंगे ना, उनको ब्लोटिंग और गैस शुरू हो जाएगा। तो इट्स वेरी वेरी इंडिविजुअल। तो ऐसा आपका बॉडी कहाँ पे खड़ा है, तो आप डेफिनेटली सी, जब हम कोई भी चीजें कुक करते हैं वो प्रोसेस होती है, सो न्यूट्रिशन डिप्लीशन तो होता ही है। बट जैसे मैंने बताया कि एल्यूमिनियम और नॉनस्टिक में मत करो। फॉर एग्जाम्पल मिट्टी के बर्तन में कर रहे हो, देयर इज 100% रिटेंशन। मिट्टी के बर्तन में एक भी न्यूट्रिशन जलता नहीं है, इसलिए पहले के जमाने में लोग बहुत ज्यादा हेल्दी थे। तो वो भी जो भी खाना बनाते थे मिट्टी के वेसल में बनाते थे, ढक के बनाते थे, तो न्यूट्रिशन सारे अंदर ही है। बट अगर आप फॉर एग्जाम्पल सूप बनाने के लिए आपने फटफट 2-3 सीटियां मार ली, राइट। गुजराती लोग, हम लोग जो पाव भाजी बनाते हैं, सो भाजी बनाने के लिए आपने सारे वेजिटेबल्स बॉईल कर दिए, सीटियां मारी, 50-60% न्यूट्रिशन आर गॉन, यानी विटामिन एंड मिनरल्स आर गॉन। फिर आप उसको इतना उबालोगे, सो आइडियली वो जो भाजी आप खा रहे हो, विच यू फील के वाओ सो मेनी वेजिटेबल्स,
it has nothing like wow, all gone. So how much you are cooking, what your body is absorbing, आपका बॉडी में क्या प्रॉब्लम है, वहां पे बहुत मायने रखता है. अगर आपको वात प्रकृति का, आई मीन गैस, एसिडिटी, कॉन्स्टिपेशन, ऐसा कोई इश्यू नहीं है, तो आप सुबह उठ के जूस ले सकते हो. फॉर एग्जाम्पल विंटर में आंवला, हल्दी, स्पिनच, कोरिएंडर, मिंट, ये सारी चीजें इकट्ठा करके एक हेल्दी जूस भी पी सकते हो. एंड आपको कुक्ड वेजिटेबल्स तो हम लोग रोटी के साथ एनीवेज खाते ही हैं, राइट? सो वैसे भी खा सकते हो. एंड सैलेड दोपहर को भी खा सकते हो. रात को कभी कच्ची चीजें नहीं खानी चाहिए किसी को. काफी सारे लोग ऐसे होते हैं जो रात को भी सैलेड खाते रहते हैं. दैट्स नॉट गुड फॉर द बॉडी. ओके, सो सारी चीजों का एक टाइम होता है, एक महीना होता है. एंड आपका बॉडी कहाँ पे खड़ा है उसको एनालिसिस करने के बाद ही हम कुछ सजेस्ट करते हैं. ओके, और मतलब मेरा 5 year old बॉय है, तो से शाम को 5 बजे, मतलब अभी जो विंटर चालू है तो फिर कैरेट, बीट और ऑरेंज इसको मिक्स करके उसका जूस देती हूँ. तो इज दिस गुड थिंग? और मतलब दैट इज फाइन. पर बच्चा 5 साल का है ना, तो उसको ऑरेंज खिलाओ. सिर्फ फ्रूट्स का हम जूस करेंगे ना तो सिर्फ फ्रूट की शुगर ही जाएगी. वो जो पीछे छूट रहा है वो पूरा फाइबर एंड लॉट ऑफ न्यूट्रिशन आप फेंक दे रहे हो. तो बेटर है कि जब वो एक एक चीजें हम चबाएंगे, ऑरेंज जितना खाएंगे वो जो न्यूट्रिशन मिलेगा वर्सेस आप ऑरेंज का जूस बनाओगे, देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस. सो अगेन द बेसिक फंडामेंटल इज लेस प्रोसेस, मोर न्यूट्रिशन, राइट? तो डायरेक्टली जितना मुंह में जा रहा है उतना अच्छा है. सो फ्रूट्स बच्चे को पहले से खाना सिखाओ rather than giving them in a juice form. ओके. और सनफ्लावर ऑयल, आप ऑयल की बात कर रहे रिफाइंड का, तो हमारे घर में सनफ्लावर ऑयल हम यूज करते हैं. तो विच ऑयल इज गुड? और लाइक I'm not a promoter of vegetable oil. So sunflower, safflower, ये सारे vegetable oil की कैटेगरी में आते हैं. Nuts and seeds के हमेशा ऑयल लिए जाते हैं. So गुजरात में रहते हैं तो पीनट ऑयल इज गुड, बट विंटर सीजन में सेसमी ऑयल, तिल का तेल, हमारे एंसेस्टर्स हमेशा विंटर में तिल का तेल ही खाते थे. इसलिए कभी जॉइंट पेन नहीं होता था, कभी नी की रिप्लेसमेंट नहीं करवानी पड़ती थी, क्योंकि लुब्रिकेशन, कैल्शियम, इतने ज्यादा मिनरल्स उसमें मिल जाते हैं. सो कच्ची घानी का तिल का तेल विंटर में, एंड बाकी के टाइम में कच्ची घानी का पीनट ऑयल. ओके. थैंक यू. एनीथिंग एल्स? यस, वन मोर थिंग. ऑनियन एंड गार्लिक, एक्चुअली ऐसा हुआ है कि मेरे मायके में हम लोग खाते थे और उधर नहीं खा रहे. तो मतलब मैं कंफ्यूज कि इसको कंटिन्यू करूँ या डिसकंटिन्यू करूँ. इट्स एक्चुअली अप टू मी, कोई कंपल्शन नहीं है. तो मैं उसके बारे में थोड़ा कंफ्यूज थी कि ऑनियन गार्लिक कंटिन्यू करना चाहिए कि इज दैट ओके कि उसको. ऑनियन गार्लिक के मेडिसिनल बेनिफिट्स बहुत ज्यादा है, राइट? बट जिस हिसाब से हम लोग खाने में ले रहे हैं, ऑनियन को इतना ज्यादा सौते करते हैं, तो उसमें कोई मेडिसिनल प्रॉपर्टी फिर बचती नहीं है. वो तो सिर्फ टेस्ट एनहांसमेंट के लिए होता है. सो आपका क्या अप्रोच है उसके ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि जिस हिसाब से खाने में हम टेस्ट एनहांसमेंट के लिए ले रहे हैं उसका कोई फायदा तो नहीं है. अच्छा, ओके. और मतलब गार्लिक को भी सौते करेंगे तो उसके प्रॉपर्टीज मर जाएगी मतलब? यस. बहुत ज्यादा नहीं, जैसे गार्लिक को कूट के आपने डाल दिया, राइट? सो दैट गार्लिक इज फाइन. आइडियली किसी को अगर ब्लड प्रेशर है या कोलेस्ट्रॉल है, वो जो गार्लिक क्लॉ की बात होती है, दैट्स अ डिफरेंट गार्लिक ऑल टुगेदर. जो सिंगल कली का आता है गार्लिक, जो एम्प्टी स्टमक लेना होता है. सो जो मेडिसिनल अप्रोच है दैट इज अ डिफरेंट थिंग. पर अगर आप डे टू डे बेसिस में अगर एक आध बार गार्लिक खा रहे हो, आपको पसंद है, तो देयर इज नो हार्म टू इट. कहीं ना कहीं जाके वो बेनिफिट भी करेगा, इफ एज लॉन्ग एज यू आर नॉट प्रोसेसिंग इट टू मच. एंड अगर नहीं खाया है तो इतना कुछ डैमेज भी नहीं है. अच्छा, और उसके उसके कुछ सब्स्टिट्यूट्स है ऐसे कुछ, मतलब उसके जो बेनिफिट्स है या फिर ऐसा कुछ? गार्लिक ऑनियन का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है डियर. ओके. Those are all the functional foods. ठीक है ना? सो गार्लिक ऑनियन डेफिनेटली उसमें एंटीऑक्सीडेंट्स भी बहुत ज्यादा है, उसके मेडिसिनल प्रॉपर्टीज भी बहुत अच्छी है, राइट? सो अगर आप खा सकते हो तो खाओ, बट उसके लिए घर वालों के साथ फाइट करने की जरूरत नहीं है. ओके, अंडरस्टूड. Nice. Yeah.
Anyone else have any queries? Hello? Yes? Can you hear me, madam? Yes, I can hear you, dear. Actually, I just wanted to know how to reduce cholesterol for senior Uh-huh. citizens. Senior citizen 65 प्लस है तो अब वो कोलेस्ट्रॉल के लिखा हुआ है, वो रोज लेते ही है डाइट वगैरह 65 प्लस में तो आई डोंट थिंक दिस चॉइस है कि भाई नहीं तो 65 इयर्स के हैं तो आप कहाँ पे लिमिटेशंस डाल रहे हो? So 65 इयर्स है तो क्या हुआ? I don't understand. तो फिर अगर मिस क्या करे चेंजेस डाइट में? और देखो ऐसा नहीं होता है कि 65 इयर्स के लिए कोई अलग थेरापी है, 25 इयर्स के लिए कोई अलग थेरापी है. लाइक आई सेड के रूट कोज फिगर आउट करना पड़ेगा. देखो कोलेस्ट्रॉल क्या है और क्यों बढ़ता है वो समझना बहुत जरूरी है. आजकल कोलेस्ट्रॉल घर घर में प्रॉब्लम हो चुका है एंड वी थिंक ये कोलेस्ट्रॉल कहीं से पैदा हुआ है और हमें अभी उसको मेडिसिन से ठीक करना पड़ेगा. देखो हम जो खाना खाते हैं ना उसमें नेचुरल कोलेस्ट्रॉल जाता है, ठीक है. देयर आर गुड कोलेस्ट्रॉल, देयर आर बैड कोलेस्ट्रॉल. तो हमारे खाने में वो रहता ही है. जो फैट होता है फैट में से कोलेस्ट्रॉल बॉडी बनाता है एंड कोलेस्ट्रॉल की रिक्वायरमेंट होती है. सो बॉडी खुद से ही कोलेस्ट्रॉल बनाता है. बट कोलेस्ट्रॉल को डाइजेस्ट करने के लिए एक स्टैटिन बनता है हमारे बॉडी में, उसकी फैक्ट्री है. सो वो स्टैटिन जब बनेगा तो वो कोलेस्ट्रॉल अच्छे से डाइजेस्ट हो जाएगा तो आपका कोलेस्ट्रॉल रिपोर्ट में नहीं आएगा. बट तब आता है जब आपका मेटाबॉलिज्म कॉम्प्रोमाइज्ड है, ठीक है. आपका वो जो स्टैटिन की फैक्ट्री है ना वो कॉम्प्रोमाइज हो गई है, वो बिगड़ गई है, वो अच्छे से स्टैटिन नहीं बना रही है. इसलिए आपको जो वो कोलेस्ट्रॉल की दवाइयां भी देते हैं ना डॉक्टर्स, वो क्या होता है दैट इज अ रेडीमेड स्टेटिन्स. सो स्टेटिन्स आप डाल रहे हो इसलिए आपका फिर रिपोर्ट ठीक आता है. पर उससे बेटर है कि आप खुद की फैक्ट्री को ठीक करो ना. तो फैक्ट्री डैमेज होने के रीजन को फिगर आउट करना पड़ेगा. स्ट्रेस से भी कोलेस्ट्रॉल आता है, सेंट्रल ओबेसिटी से भी कोलेस्ट्रॉल आता है, आपके खाने में अगर ट्राइग्लिसराइड ज्यादा है तो उससे भी ज्यादा कोलेस्ट्रॉल आ रहा है. आपकी बॉडी की इतनी कैपेसिटी नहीं है स्टैटिन्स बनाने की, इसलिए रिपोर्ट में ज्यादा आ रहा है. जैसे मैंने वो ट्रांस फैट का अभी बताया था, तो ट्रांस फैट अगर आपके खाने में डेली बेसिस में कुछ ना कुछ है, सामने फिजिकल एक्टिविटी बिल्कुल नहीं है, राइट. आपका खाना सिर्फ कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट में रिच है, विटामिन मिनरल्स एंड प्रोटीन अच्छे से नहीं जा रहा है, इम्बैलेंस्ड खाना है तो भी कोलेस्ट्रॉल आता है. सो यहाँ पे मेरे पास बहुत लिमिटेड आपने इंफॉर्मेशन दी है. जब तक मैं हिस्ट्री के ऊपर काम नहीं करूंगी मुझे पता नहीं चलेगा. बट कोलेस्ट्रॉल को रिवर्स करने के लिए दवाइयों की जरूरत नहीं होती है, सिर्फ रूट कोज के ऊपर काम करना होता है. एंड वो कोई भी हो, 65 इयर्स के हो, 25 इयर्स के हो, 45 इयर्स के हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है. बट डेफिनेटली एज रिलेटेड थोड़ा इश्यूज होते हैं, सो वो एक फैक्टर रहता है, ठीक है. बट वो बैठ के देखना पड़ेगा कि एक्चुअली रूट कोज क्या है एंड इट इज कम्प्लीटली रिवर्सिबल विदाउट मेडिसिन. कोविड से वो लोग वॉकिंग पे जाते थे, एक्सरसाइज करते थे, उनको नहीं था. मेरे पेरेंट्स एक्चुअली दोनों तो क्या उनका फिजिकल मूवमेंट कम हो गया है उसके बाद से दोनों. और फिर डॉक्टर ने कहा राइट. सो दैट कैन बी योर ट्रिगर कि लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी. सो बाहर नहीं जा रहे तो उनको बोलो घर में करें फिजिकल एक्टिविटी, ठीक है. सो जैसे ही वो करने लगेंगे, खाने में मॉडिफिकेशंस करेंगे, सब कुछ ठीक हो जाएगा. कोलेस्ट्रॉल के मेडिसिन नहीं लेनी पड़ेगी. we are using mustard oil, that is okay. मस्टर्ड ऑयल इज वेरी गुड, राइट. मस्टर्ड ऑयल में ओमेगा 3 होता है. सो हम लोग जिसको कोलेस्ट्रॉल, हाई कोलेस्ट्रॉल या हृदय की जो प्रॉब्लम होती है हार्ट की, उन लोग को मस्टर्ड ऑयल देते हैं. सो ओमेगा 3 वो इन्फ्लेमेशन रिड्यूस करता है, तो दैट इज वेरी गुड, एब्सोल्युटली. और वो तिल का तेल जो भी आपने बताया, हाँ, कच्ची घानी का तिल का तेल, उसमें तो फिर कोलेस्ट्रॉल का इश्यू नहीं होगा ना? नहीं, आप ऐसा कर सकते हो कि तिल एंड मस्टर्ड को 50-50% इकट्ठा कर सकते हो, तो तिल के बेनिफिट भी मिल जाएंगे और मस्टर्ड ऑयल अपना काम करेगा. That's how you can play around. बस ये पोस्ट हुआ, उससे पहले तो नॉर्मल रिपोर्ट्स थे. बराबर है, पर अभी जो हुआ है इट कैन बी ड्यू टू स्ट्रेस आल्सो.
ओके घर पे बैठे बैठे लोग बहुत स्ट्रेस्ड हो गए हैं कोविड में, राइट? सो स्ट्रेस का कोलेस्ट्रॉल पे बहुत ज्यादा इम्पैक्ट है, एंड लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी इंड्यूसेस द स्ट्रेस, राइट? सो उनको बोलो थोड़े प्राणायाम करें, मेडिटेशन करें, फिजिकल एक्टिविटी घर पे करें, और खाने में लिमिटेड ऑयल ले, 1 टीस्पून ईच मील, राइट? एंड बाहर की मिठाइयाँ और वो सब कुछ बंद कर दो अगर वो लोग कुछ खा रहे हैं तो, राइट? सो गंदा फैट बंद कर दो और घर का अच्छा वाला उनको दो, बट मेक श्योर के बैलेंस न्यूट्रिशन जा रहे हैं तो कोलेस्ट्रॉल ठीक हो जाएगा। थैंक यू मैडम। Sure, sure. You're welcome. Madam, hello, excuse me. Yes, hello. yes. I would like to know, you have just said that the milk is not good to be taken with any khakra or any salty items. So Yes. how should the milk, then that respect, how should the milk be consumed? Milk should be consumed just as it is. No, Just I mean, as it is. No, but what is should you have anything with it, or you should not have anything at all when you're having No. milk? That's what I'm trying to understand. See, milk is the संपूर्ण आहार। हम सब ने Okay. कहीं ना कहीं ये सुना है, पढ़ा है। So जब कोई खाना संपूर्ण आहार होता है, उसके साथ में आप कुछ भी एडिशन करोगे, that would lead to over nutrition. बॉडी उसको डाइजेस्ट नहीं कर पाता है। So milk means milk, and the best time to consume the milk is before going to bed. 15-20 मिनट्स पहले। हमारे पूर्वज कैसे लेते थे? रात को सोने से पहले दूध पी के सोते थे। Yes. क्योंकि उसमें बहुत अच्छे हार्मोन्स रिलीज होते हैं, तो जिन लोगों को नींद नहीं आती है उनको हम रात को दूध प्रिस्क्राइब करते हैं, उनको बहुत अच्छी नींद आ जाती है। तो ये सारे नुस्खे हैं, सारी चीजों का एक लेने का टाइम होता है, तरीका होता है। Okay. और गर्म ही दूध पीना चाहिए, कभी फ्रीज का डायरेक्ट कोल्ड, बहुत ज्यादा लोग आजकल फ्रीज कोल्ड मिल्क पीने लगे हैं। दैट डैमेजेस योर बोन्स लाइक एनीथिंग। फिर कैल्शियम की डेफिशिएंसी ही होगी, कैल्शियम नहीं देगा वो दूध। And basically in diabetes, as it is said, that what you consume is all converted into calories, and that's what you have to control. That's what I've understood in diabetes. So how is best that what is the time we should have the breakfast and lunch? Spread it out. Should we spread it out, or you have early lunch and then go down have snacks after the 2 or 3 hours in each day? Yeah, see, basically डायबिटीज में है ना, टाइप 2 की मैं बात कर रही हूँ, लेट मी बी वेरी क्लियर, राइट? एंड इवन टाइप 1 में वी प्रिस्क्राइब स्मॉल फ्रीक्वेंट मील्स। रीजन बीइंग इज कि एक साथ जब आप खाते हो तो बहुत ज्यादा ग्लूकोज बन जाता है एक साथ। तो बहुत ज्यादा एक साथ ग्लूकोज बन गया तो आपकी जो इंसुलिन की फैक्ट्री है पेनक्रियास, वो इतना ज्यादा काम अच्छे से नहीं कर पा रही है, इसलिए फिर आपका ग्लूकोज बढ़ जाता है। इसलिए स्मॉल फ्रीक्वेंट मील्स, राइट? सो व्हेन यू डिस्ट्रीब्यूट तो वो धीरे धीरे ग्लूकोज बनेगा, जितना धीरे बनेगा बॉडी उसको अच्छे से मैनेज कर पाएगा, राइट? सो स्मॉल फ्रीक्वेंट मील्स डेफिनेटली। सो ब्रेकफास्ट का आइडियल टाइम है एनीवेयर बिटवीन 8 to 9, लंच का आइडियल टाइम है एनीवेयर बिटवीन 12 to 1:30, एंड डिनर का टाइम है एनीवेयर बिटवीन 7 to 8। दैट्स द मैक्स। इससे ज्यादा हम डिले नहीं कर सकते, राइट? अनलेस एंड अनटिल कोई वर्किंग है जो नहीं ही मैनेज कर पाता है, तो फिर हम लोग उनको उस हिसाब से डिजाइन करके देते हैं। बट डायबिटीज का मैनेजमेंट, इवन कोई भी आप मेडिकल बुक उठाओगे ना, उसमें फर्स्ट स्टेप है आपका डाइट एंड लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन। क्योंकि डायबिटीज में रेस्ट्रिक्शन नहीं लेना है, राइस बंद कर दो, पोटैटो बंद कर दो, ये बंद कर दो, वो बंद कर दो। इट्स नॉट अबाउट रेस्ट्रिक्टिंग, बट इट्स अबाउट एडिंग समथिंग which makes sure कि आपका ग्लूकोज जो शूट अप हो रहा है वो धीरे धीरे ब्लड में रिलीज हो। सो इट्स एन आर्ट। डायबिटीज का फूड इज एन आर्ट। सो डायबिटीज जिसको भी है उनको, उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है, दे शुड कंसल्ट न्यूट्रिशनिस्ट। जितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है डॉक्टर को कंसल्ट करना, उससे कहीं गुना ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी लाइफस्टाइल एंड फूड को डिजाइन करना। दवाइयां एक टाइम कॉम्प्रोमाइज हो सकती है, डायबिटीज में खाना कॉम्प्रोमाइज नहीं हो सकता, बिकॉज ये आपका फील्ड ही नहीं है, आप खुद से उसको मैनेज नहीं कर सकते। इसलिए फिर डोज हमेशा बढ़ते जाते हैं, एंड स्टेज में किडनी डिजीज हो जाता है डायबिटीज वालों को। सो जिसको भी डायबिटीज है या कोई घर में जानते हैं कि डायबिटीज का पेशेंट है, यू शुड टेक दैट पेशेंट टू अ न्यूट्रिशनिस्ट। इट्स मस्ट।
Okay. Thank you. Sure. Anyone else? I think there are no more questions. Okay. Okay. Hello. Yeah. Hello. Please. Hello. Please go ahead. Please go ahead. We अच्छा, can hear you. टमाटर जो है वो एसिडिटी का प्रॉब्लम हो तो कच्चे खाने चाहिए या सब्जी में डाल के गर्म करके खाए तो नॉन एसिडिक हो जाएंगे? नहीं, ऐसा नहीं होता। टमाटर को बिना छिलका और सीड्स निकाल के खाना पड़ेगा अगर आपको बहुत ज्यादा एसिडिटी है। सो एसिडिटी पित्त ज्यादा बढ़ने से होता है आपके बॉडी में। सो आपको पित्त नाशक फूड खाने चाहिए, ना कि पित्त वर्धक जो आपके बॉडी में पित्त बढ़ाए। ठीक है। सो रेस्ट्रिक्ट द इनटेक ऑफ टोमेटोज। पर अगर सब्जी में जा रहे हैं, दाल में जा रहे हैं तो उससे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। But work on the root cause of your acidity. So again, restriction is not the solution. Okay, acidity हो रही है तो ये नहीं खाना, ये नहीं खाना, ये नहीं खाना है। But क्यों हो रही है उसको फिगर आउट करके अपनी लाइफ में से उसको डिलीट मारो ना, राइट? तो फिर आप सब कुछ खा सकते हो, राइट? How old are you, sir? Okay, thank you. I am 68. 68. Okay, fine. So acidity आपको कब होती है? रात को हो रही है, दोपहर को हो रही है, कब हो रही है? रात को थोड़ा सा वो खट्टे धकार या ऐसा कुछ, या खाना खाने के बाद? हाँ, मे बी इन द नाइट। हाँ, तो डिनर है ना आपका, देखो सर लाइट कर दो। एंड एज रिलेटेड थोड़ा इश्यू हो सकता है, तो आप डिनर लाइट कर दो, थोड़ा अर्ली कर दो, अराउंड 7 साढ़े 7 बजे तक। उसमें बहुत ज्यादा तीखा मत खाओ, और पल्सेस, दालें, लेग्यूम्स, हैवी चीजें जैसे राजमा, छोले, ये सारी चीजें रात को मत खाओ। लाइट कर दो डिनर आपका। एंड रात को सोने से पहले दूध में है ना ऑर्गेनिक गुलकंद, मैं शुगर वाले गुलकंद की बात नहीं कर रही हूँ, मैं बात कर रही हूँ जो एक्चुअल गुलकंद होता है, रोज पेटल वाला, जिसको मिश्री से बनाया होता है। ठीक है, वो आप 1 चम्मच दूध में डाल के पी लोगे तो आपकी एसिडिटी ठीक हो जाएगी धीरे धीरे। Thank you. Thank you. Yeah, and madam, I have one more question. I am Tejas Shah. We speak about the oil, so we are using extra virgin olive oil. So is it good for the health comparable to the kachi ghani oils? No, because extra virgin olive oil का smoking point only 300 है। हमारे इंडियन खाने में तड़का लगता है जो स्मोकिंग पॉइंट पहुंच जाता है 450-500 डिग्री पे। ठीक है, सो वो वर्जिन ऑयल अपने सारे न्यूट्रिशन गवा देता है एंड उसका डैमेज होता है हमारे बॉडी में, फ्री रेडिकल्स निकलते हैं। सो वर्जिन ऑलिव ऑयल सपोज टू बी यूज्ड एज अ रॉ। आप सैलेड में ले सकते हो एज अ ड्रेसिंग, बट आप उसका तड़का नहीं लगा सकते। Okay, so that is not to be used in Indian cooking methods. इसलिए better option is the sesame oil, peanut oil and mustard oil. Okay, thank you, madam. Sure. मैम, you told about गुलकंद, तो कोई ब्रांड आप सजेस्ट कर सकते हैं या फिर ऐसा कुछ? ब्रांड तो नहीं है। मेरे घर में जो गुलकंद आता है that I order from the सहयोग गृह उद्योग, एक अहमदाबाद में है, जो ऐसे ही सारे ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स रखते हैं। इफ यू नीड दैट नंबर, you know, I'll give it to the Anjali ji, right, and you can get it from her, or you can just message me directly. You all can note down my number, right? I will put down in the chat box also. कोई भी ऐसी जरूरियात है जो आपको नहीं पता है कहाँ पे मिल रहा है, I am dropping my number over here in the chat box. Okay, thank you so much, ma'am. Sure. It's 9016611661. Yeah, I have given my number into chat box. Okay. So I think everybody is done with the question queries.
If you guys have any further queries, you can reach out to me personally also, no problem. Great, great, Riddhi ji. Once again, thank you so much for sparing your valuable time and answering each and every question very quietly. And thank you for sharing your mobile number too. We are grateful to you on behalf of Ahmedabad branch of ICI. We look forward for you for many more sessions. Thank you so much. For sure, and for sure. Thank you all participants. We look forward for next session on Sunday. Thank you so much. Thank you.